I am working in the IT for last more than 8 years now. Okay. Today I will be your host, and like we have Sachin joined, and we have Prasad as well. So from our team. Okay. So and before we start, let me first set some ground. So looking at the names, I feel that everyone of you should be able to understand Hindi or Marathi. But let's go with Hindi because I feel that like in our local language, the knowledge that we absorb from a session would be more than in English. But that's not a problem. Even if you struggle with that, let us know. We can conduct it in English as well. So yeah. So having said that, let's start. So let me first introduce our institute. So most of you, or at least some of you, must be joined through referrals, like the past students or someone or friend must have referred to you. So those people already know what S2 Software Institute is and how we deliver our courses and the quality of course. So those people already know. But who are joining or this for the first time, or they haven't heard of us, so you will get to know what things we have, like how we take efforts for our students, and what tools and everything will get covered as part of this course. So the main objective of conducting this demo session is that you should be aware, since you are interested in DevOps. That's why you guys have joined it. And why you are interested, because clearly there is a very good demand in the market for DevOps. So the agenda for today's session is like you should be aware of what DevOps is, because right now most of you, I can say, because from my experience we have completed multiple batches right now till date. So most of you, while you join, you don't know what actual DevOps is, what cloud is, why there is a demand for the cloud, and why there is demand for DevOps. So you guys don't know that. So the main objective of this is to make you aware that what all these things are, so that whenever you take this decision to join this course, okay, so you should be aware, well aware that what this is, okay, and why you have to choose the S2 as well, like what efforts we take to make sure that every student like gets the proper knowledge and is able to get into the DevOps field. Okay. So in case, like what I would suggest is, like in case if you guys have any doubts, obviously you guys will have doubts, so feel free to ask all of your doubts today. But I would request everyone to stay on the call till the end and then ask your doubts. Why I'm saying this, because initially you guys will have a lot of doubts, like what tools you will cover, what, like there will be lot n number of doubts, everyone will have that. But during this demo session, those doubts will get covered, most of those doubts will get covered. But even if you feel that there are any doubts which are left and you want to clarify it, so you can ask after this session is done, like in the end of this session. Or anyways, we are always available on WhatsApp. Okay. So you can post. So I think everyone will have our WhatsApp numbers, so you can always post all any of your doubt on WhatsApp. It's not like now, even when you join the course, we are always available there, so you can post the doubts in on WhatsApp. Okay. So I will hand over this call to Prasad and Sachin, so you guys can carry forward. Yeah. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yeah, Prasad, you're audible. ओके, Yeah. ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हिंदी में ही, क्योंकि अगर अपना को टेक्निकल सीखना है तो अपन थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर ही सीखेंगे, क्योंकि अल्टीमेट एम अपना क्या है कि अ, जो भी कंसेप्ट है वो हमको समझना चाहिए। जैसे आज हम लोग कनेक्ट हुए हैं, जितना यहाँ पर दिख रहा है हमको 16 लोग जो कनेक्ट हुए हैं, उनका मेन पर्पस क्या है कि मैं जो भी कोर्स में एनरोल करने जा रहा हूँ वो क्या मेरे लिए कंपेटेबल है। मेजोरिटी लोगों के लिए डेवऑप्स कंपेटेबल होता ही है। मतलब अगर आपको कोर डेवलपमेंट में नहीं जाना है, या फिर कोर टेस्टिंग टेस्टिंग में नहीं जाना है, या फिर ऐसा जो मैनुअल टास्क होता है वो नहीं करना है, बेसिक स्क्रिप्टिंग, बेसिक कोडिंग और
जिसका मार्केट में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, उनके लिए डेवऑप्स एक परफेक्ट है। और अभी अगर आप मार्केट में कंपेयर भी करोगे सैलरी वाइज भी, तो आपको जो भी फुल स्टैक डेवलपर है उनके कंपैरिजन में डेवऑप्स की सैलरी मैच होती है। तो अब ये हो गई सैलरी की बात, ये हो गई रिक्वायरमेंट की बात। मार्केट में रिक्वायरमेंट है, कितने साल तक रिक्वायरमेंट रहेगी, बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। अभी भी माइग्रेशन स्टार्ट हुआ है। क्लाउड, ये जो डेवऑप्स, ये जो टर्मिनोलॉजी है कितने साल से चल रही है, पिछले 10 साल से बूम में है, और आगे भी 15-20 साल तक ये बूम में ही रहेगी। तो क्या ये करेक्ट टाइम है ये डेवऑप्स सीखना, ये क्लाउड की टेक्नोलॉजी सीखना? तो ये टाइम जो है ये करेक्ट टाइम है। अभी हम कंफ्यूजन किस में होगा, अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अभी मेजर कंफ्यूजन किस में है? अभी हम लोगों ने डेवऑप्स और एडब्ल्यूएस स्टार्ट कर दिया, अभी मेजोरिटी कंफ्यूजन किस में होता होगा कि मैं क्या सीखना चाहिए मुझे। एडब्ल्यूएस, क्लाउड गार्टनर, मैजिक क्वाड्रेंट। अब ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती है हमको कि किस चीज की रिक्वायरमेंट अभी सबसे ज्यादा है, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बूम में है। तो हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, जैसे हम कोई भी टीवी लेते हैं, तो टीवी लेते टाइम भी हम लोग देखते हैं ना कि बाबा कौन सा टीवी बूम में है ज्यादा, तो हम लोग कहाँ से देखेंगे? 1 मिनट। हम लोग गूगल में जाकर रिव्यू देखते हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सा टीवी लेना चाहिए। तो हम लोग करियर बना रहे थे, हमको तो पहले देखना चाहिए ना कौन सा सबसे ज्यादा बूम है। अगर आप क्लाउड टेक्नोलॉजी के अंदर देखोगे, क्लाउड प्लेटफॉर्म में यहाँ पर अगर जो दिख रहा है, इसमें सबसे ज्यादा सबसे टॉप पे कौन सा है? एडब्ल्यूएस है। अगर ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा जॉब्स किसके रहेंगे? एडब्ल्यूएस के। तो ये रीजन है हम लोग एडब्ल्यूएस एज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म सीख रहे हैं, जिसके साथ में हम डेवऑप्स प्रैक्टिसेस के लिए डेवऑप्स के कुछ टूल्स सीखेंगे। मतलब हम लोग जब ये कोर्स कंप्लीट कर कर रेडी हो जाएंगे मार्केट में, तो हमको एडब्ल्यूएस जो है, अमेजॉन वेब सर्विस ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की है, जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, वो हम यूज करना सीख जाएंगे। दूसरा, हम डेवऑप्स बोल रहे हैं, तो डेवऑप्स मतलब क्या? डेवऑप्स प्रैक्टिसेस के अंदर कुछ टूल्स आते हैं जिनका क्या पर्पस है वो हमको पता चलेगा, और उनको इंस्टॉल कैसा करना है, उनको यूज कैसा करना है, जिसके थ्रू डेवलपर जो है उनकी लाइफ इजी कैसे हो जाएगी। अभी दो चीज होती है, एक अभी मेजोरिटी आप लोग में से कोई आईटी बैकग्राउंड से होंगे, कोई आईटी बैकग्राउंड से नहीं रहेंगे, तो हम लोग सबको कंसिडर करके चलते हैं। एक भी स्टोरी के जैसा ही है कि मतलब आईटी में वर्क होता कैसे है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब समझो कि ये है इन्फोसिस, मैं यहाँ पर इसको इन्फोसिस लिखता हूँ। इन्फोसिस के पास रिक्वायरमेंट आ रही है, मतलब जैसे ये हो गई एचएसबीसी, ये एक बैंक है। ये बैंक बोल रही है कि हमको हमारा एक वेबसाइट चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए। अभी क्या क्या लगता है हम लोग कैसे कैसे बैंक को हम लोग रीच आउट करने के लिए, कैसे? एक तो हम खुद बैंक में जा सकते हैं, दूसरा वेब साइट्स क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये डिफरेंस बताऊंगा बाद में धीरे धीरे। मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी एचएसबीसी ने बोला कि नहीं, अभी हमको इंटरनेट के थ्रू हमारी वेबसाइट्स, हमारे जो भी बैंकिंग फीचर्स है वो अवेलेबल करने हैं। तो एक तो हम मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं, या तो वेब एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अभी वेब ऐप और वेबसाइट ये सब क्या है? जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी साइट, जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी साइट हम लोग ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। समझो अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ hsbc.com, जो भी हम ब्राउजर के थ्रू, अभी ये रीच नहीं हो रहा क्योंकि नेटवर्क थोड़ा ये होगा, तो जो भी एप्लीकेशन जो भी हम ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इसके जगह पे हम आईसीआईसीआई ले लेते हैं, इसका रीच नहीं हो रहा है, आईसीआईसीआई.com। वो हो गया तुम्हारा वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन। अभी ये जो रिक्वायरमेंट है, अभी जैसे कि ये वेब एप्लीकेशन हो गया या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, ये डेवलप करने का काम कौन करेगा? ये डेवलपर्स का काम है। अभी डेवलपर्स कौन से टाइप के हो जाते हैं? अगर समझो
ये एप्लीकेशन जावा बेस्ड है तो जावा डेवलपर लगेगा, ये एप्लीकेशन जो है ये पाइथन बेस्ड है तो पाइथन एप्लीकेशन लगेगा, पाइथन डेवलपर लगेगा। ये अगर डॉट नेट बेस है तो डॉट नेट लैंग्वेज के ऊपर ये एप्लीकेशन बिल्ड होगा। अभी ये जो लैंग्वेजेस है, अगर ये लैंग्वेजेस जो भी सीखता है, ये लैंग्वेजेस के ऊपर बैकएंड एप्लीकेशन क्रिएट करना जो भी सीख जाता है, वो जावा डेवलपर बनता है, पाइथन डेवलपर बनता है, डॉट नेट डेवलपर बन जाता है। अभी हमारा सोल पर्पस क्या है कि हमको AWS डेवऑप्स इंजीनियर बनना है। तो अगर हमको ये बनना है तो हमको क्या क्या सीखना पड़ेगा, और ये सीखना है, लेकिन ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे मैंने बताया कि HSBC को इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल होना है, तो उनको वेब पेजेस चाहिए, वेबसाइट चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए। इसके लिए वो लोग इन्फोसिस के पास गए, इन्फोसिस ने बताया कि हाँ हम लोग इतने सेट ऑफ डेवलपर है, इन डेवलपर को हम लोग तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए असाइन कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करके तुमको प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए उनको जावा डेवलपर लगेगा। और कौन लगेगा, डेटाबेस, जहाँ पर अभी आप बैंक में जाते हो, यूजर नेम और लॉगिन करते हो, पहली बार जब जाते हो तो रजिस्टर करते हो, तो रजिस्टर करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है किसी डेटाबेस पे होगी, ये डेटाबेस है। तो ये डेटाबेस के लिए DBA लगेंगे, डेटाबेस एडमिन। एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए डेवलपर्स लगेंगे, डेटाबेस के लिए डेटाबेस एडमिन लगेंगे, नेटवर्क के लिए नेटवर्क इंजीनियर लगेंगे। ये सारे सेट ऑफ इंजीनियर्स एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे एक पर्टिकुलर गोल हो गया तुम्हारा कि मेरे को वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है, उसके लिए तुमको ये सारी चीजें लगेंगी। अभी ये सब क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन क्रिएट हो रहा है, एक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBA, एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए एक डेवलपर लग रहा है। अभी हमारा यहाँ पर क्या काम हो रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। डेवलपर क्या करता है, डेवलपर एक सोर्स कोड लिखेगा, ये इसको मैं SRC बोलते हैं। अभी समझो सोर्स कोड लिखा, किस लैंग्वेज में लिखा है उसने, जावा लैंग्वेज में लिखा है। अभी इसे कंपाइल करना होता है। अब ये जो लिखेगा, जैसे कि समझो अभी ये जो लैंग्वेज है ये हमें समझ में आए, इसलिए ये मतलब हमको अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो वो लैंग्वेज हमारे लिए भी फ्रेंडली होनी चाहिए, और हम अगर उसको कंपाइल करेंगे तो कंप्यूटर को भी समझ में आना चाहिए, इसलिए जावा लैंग्वेज क्रिएट किया है। तो जावा डेवलपर को जावा लैंग्वेज आती है, इसलिए वो जावा डेवलपर है। इसे कंपाइल करने के बाद जब हम इसे, ये समझो कि फाइल है यूजर डॉट जावा, इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद ये क्या होगा, यूजर डॉट क्लास फाइल बनेगी। ये ऐसी एक फाइल है, ये ऐसा एक फंक्शन है। समझो कि इस फाइल के अंदर एक एक फंक्शन लिखा हुआ है कि उसका काम क्या है कि जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो उसके इन्फॉर्मेशन स्टोर होना चाहिए, कहाँ पर, डेटाबेस में। जब रजिस्टर करेगा तब उसके इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। ये फंक्शनलिटी यहाँ पे लिखा है। तो सिर्फ लॉगिन के लिए ही तो एक एप्लीकेशन नहीं लिखा जाएगा ना, लॉगिन करेगा वहां पर जाकर FD ओपन करेगा, तो उसके लिए अलग अलग ऐसे फाइल्स लिखे रहेंगे, जैसे d.java, तो वो डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी, सबकी एक अलग अलग डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी। तो इतने सारे जो भी फंक्शनैलिटीज है, अलग अलग फाइल्स के अंदर जो अलग अलग फंक्शनैलिटी जावा डेवलपर लिखेगा, उसको एक साथ करके उसको कंपाइल करने का काम। कंपाइल करना मतलब क्या, कंप्यूटर को समझे, 0 1 1 0, ये कंप्यूटर को समझता है, बाइनरी लैंग्वेजेस कंप्यूटर को समझती है, तो उसको कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करके कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इन सबको, इंडिविजुअल फाइल को हम कंपाइल करते हैं, और एक साथ जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो उसको पैकेज बोलते हैं। तो जैसे अभी जावा फाइल है तो ये डॉट जार फाइल हो जाएगी। तो ये तीनों चीज याद रखना, जावा, क्लास, जार फाइल, इसको बिल्ड कर कर हम किसी भी सर्वर पर, जैसे अभी तुम्हारे पास, मेरे पास यहाँ पर क्या है, सामने कंप्यूटर है, ये विंडोज सर्वर है, ये विंडोज का कंप्यूटर है। लेकिन अगर विंडोज के सर्वर्स भी होते हैं तो उसको डॉट NT से डिनोट करते हैं। मतलब विंडोज के सर्वर पर या फिर लिनक्स के सर्वर पर हम लोग उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने का काम, ये हमारा है। डेवलपर का काम क्या है, एक मिनट, ये मैंने इतनी स्टोरी क्यों बताई, कि हमको बताने के लिए डेवलपर का काम क्या है, ये पर्टिकुलर फाइल्स लिखना, वो इमेजिन होना चाहिए हमको कि ये लिखना, ये डॉट जावा फाइल लिखना, उसको कंपाइल करने का, बिल्ड करने का काम हमारा है। हमारा काम क्या है अभी, हमारा मेजर काम क्या है, अभी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना मतलब क्या, जैसे कि अभी हमारे पास ये AWS अकाउंट है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी AWS अकाउंट क्रिएट करेगी, हमको उस AWS अकाउंट का एक्सेस देगी, और ये यहाँ पे साइड में डेवलपर है समझो, ये इसका काम कर रहा है कोड लिखने का, ये एप्लीकेशन क्रिएट करने का। वो उसके पर्सनल लैपटॉप में, जैसे कि ये विंडोज लैपटॉप है, एक मिनट है बस, मुझे कॉल आ रहा था, एक सेकंड।
यहाँ से हम इस एप्लीकेशन ये जो एप्लीकेशन जो लिख रहा है इसको इस सर्वर पर लेकर जब जा रहे हैं, मतलब डिप्लॉय जब कर रहे हैं हम लोग इसको, उस प्रोसेस में कुछ स्टेजेस होते हैं जो डेवऑप्स में डिफाइन है। जैसे कि एप्लीकेशन की यूनिट टेस्ट केसेस लिखे होने चाहिए, वो यूनिट टेस्ट केसेस पास होने चाहिए। डेवलपर खुद ही लिखता है यूनिट टेस्ट केसेस। ये जो मैंने जैसे बताया था कि यूजर डॉट जावा फाइल, एफडी डॉट जावा फाइल, अकाउंट्स डॉट जावा फाइल, ये एक एक जो भी हमने फंक्शनैलिटीज लिखे हैं, इनके हर एक के लिए एक यूनिट टेस्ट केसेस की फाइल होती है। वो हर एक फंक्शनैलिटीज के लिए वो उसको यूनिट टेस्ट मतलब क्या, सिंगल यूनिट मतलब क्या, वन वन। तो उसके लिए टेस्ट केसेस होते हैं, वो पास होने चाहिए। वो अगर पास नहीं हो रहे तो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि नहीं यूनिट टेस्ट केसेस फेल हो रहे डेवलपर को, और बताएंगे कि यूनिट टेस्ट केसेस करेक्ट करो। ये सिंगल सिंगल जब टेस्ट केसेस पास हो गए, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी जो टेस्टर्स करेंगे। अगर वो भी फेल हो रही है तो वो नोटिफाई होना चाहिए, तो वो नोटिफिकेशन जाने के लिए जो सिस्टम हम क्रिएट करते हैं वो हम लोग क्रिएट करते हैं। तो डेवलपर के डेस्कटॉप से सर्वर तक कोड लेके जाना, और वो 24/7 जो भी सर्विस है, जैसे आप hsbc.com पे जा रहे हो, फिर ICICI.com पर जा रहे हो, वो 24/7 अप रहना, वो हमारा काम है। और वो सिक्योर भी रहना कि कोई दूसरा इस एप्लीकेशन सर्वर पर, ये जो सर्वर हमने क्रिएट किया है, ये एप्लीकेशन सर्वर पर कोई भी इसे एक्सेस ना कर पाए। इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाए, hsbc.com को एक्सेस कर पाए, लेकिन इस सर्वर को कोई भी एक्सेस ना कर पाए। जैसे अभी ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, इसको एक्सेस ही मेरा ही है, वैसे ही आ, ये इस पर्टिकुलर सर्वर का एक्सेस किसी दूसरे को ना रहे, बस हमको रहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है। ये डेवलपर को भी इस सर्वर का एक्सेस नहीं रहता है, टेस्टर को भी इस सर्वर का एक्सेस नहीं रहता है, किसको होता है, बस हमें होता है। तो अभी बेसिक से समझते हैं कि ये जो है ये डेवलपर है, डेवलपर ने जो भी एप्लीकेशन क्रिएट किया है वो जावा बेस्ड में किया है। अभी इस जावा बेस्ड एप्लीकेशन को हमको इस सर्वर पर लेके जाना है। तो अभी जैसे तुम कोई भी गेम इंस्टॉल करते हो तुम्हारे लैपटॉप पर, तो गेम की कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। तो वो प्री मतलब पहले से कुछ इंस्टॉल करके रखना पड़ता है उस गेम को। गेम की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मैं 4 GB रैम रहेगा तो ही चलूंगा, वैसे ही इस एप्लीकेशन का भी होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली 4 GB रैम चाहिए मेरे को, स्टोरेज इतना चाहिए, विंडोज 10 पे नहीं चलूंगा, विंडोज 11 पे चलूंगा। तो उसी तरीके से ये जो सर्वर है, इस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हमको सिलेक्ट करना पड़ता है कि भाई कितना रैम चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, ये सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। अभी जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, ये तो हमको जार फाइल देगा, हम लोग उसको बिल्ड करेंगे। तो वो जब हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे तो ये जो जार फाइल है, तो इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, जावा होना इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर लिनक्स सर्वर पे हमको उसको इंस्टॉल करना होगा, तो इसके लिए अलग अलग टूल हम यूज करते हैं। जैसे अभी ये तो AWS अकाउंट हो गया, AWS अकाउंट के अंदर सर्वर क्रिएट करना है, मैंने बस इतना ही बता दिया। लेकिन कैसे करना है, कौन सी सर्विस यूज करके करना है, ये बताएं। ये अभी तक बचा हुआ है। तो हम लोग आगे जाते हैं। अभी AWS में हम कौन से सर्विसेज सीखेंगे। EC2। अब ये EC2 जो सर्विस है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इसका पर्पस क्या है, जैसे मैंने सर्वर सर्वर बोल रहा था, सर्वर को यहाँ पर नाम क्या देते हैं, इंस्टेंसेस। सर्वर को हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते हैं, इंस्टेंसेस। अब ये जो सर्वर है, जैसे इस इंस्टेंस इज इक्वल टू सर्वर, ऐसा लिख दो। अभी इसके की कंपोनेंट क्या है, ये AMI। जैसे तुम विंडोज के लिए पहले 2010-11 में जब भी कोई विंडोज लैपटॉप लेते थे तो तुमको साथ में एक CD मिलती थी, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 9 की। तो वो क्यों मिलती थी, क्योंकि उसके अंदर उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती थी। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना उस पर्टिकुलर सर्वर पे, तो यहाँ पर AWS ने खुद का नाम दिया है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेज को, उसको बोलते हैं AMI। अभी यहाँ पर ये सिक्योरिटी ग्रुप है। तो जैसे यहाँ पर इस सर्वर को मैंने जैसे बताया था कि इसको सिक्योर रखना है कि इसको एक्सेस किसी का भी ना हो। तो अभी तुमको देखना है कि ये माई IP, व्हाट इज माई IP। जब भी तुम इंटरनेट पे जाके देखोगे व्हाट इज माई IP पे, तो ये तुमको एक IP एड्रेस मिलेगा, जो भी तुम्हारे घर पे राउटर जो लगा होगा वाईफाई का, उसका ये IP होता है। तो अभी समझो कि ये जो सर्वर है, ये सर्वर पे मुझे इस IP से ही एक्सेस देना है। जैसे कि मैं, मेरा पर्सनल लैपटॉप है, ये मेरे पर्सनल लैपटॉप से ही, मेरे कंपनी का लैपटॉप ये समझिए, और वहां से ही मैं इस पर्टिकुलर इसको एक्सेस कर पाऊँ, बाकी कोई भी एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर जैसे नाम लिखा है ना, वैसे ही तुमको इजी समझ आ जाएगा कि सिक्योरिटी ग्रुप्स। सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है कि कौन से IP एड्रेस से, कौन से लैपटॉप से तुम इसको एक्सेस कर सकते हो, किसको एक्सेस देना है, उसके लिए की पेयर वगैरह क्रिएट करना। तो सर्वर क्रिएट करना, सर्वर को किसका एक्सेस हो, उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कौन से सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हो, ये सब हम लोग देखते हैं।
ये इतना तो बेसिक हो गया। ये सारे सर्विसेज का नाम है। अभी एक दिन में आपको ये सब समझना नहीं है कि लोड बैलेंसिंग क्या है। जैसे अभी यहाँ पर ये एक है सर्वर, ऐसा मल्टीपल सर्वर्स रहते हैं। एक सर्वर रिक्वेस्ट इतने सारे, जैसे अभी आप आईपीएल के मैचेस देखते हो, जैसे ही धोनी आ जाता है, समझो 10 करोड़ से 19 करोड़ व्यूवर्स हो गए। तो अचानक से इतने सारे रिक्वेस्ट अगर आ रहे हैं, जैसे तुम मोबाइल के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन अगर ओपन करोगे तो मोबाइल हैंग हो जाता है, वैसे ही अगर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर आते रहेंगे तो वो एप्लीकेशन भी हैंग हो जाएगा, सर्वर हैंग हो जाएगा। तो वो ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग करते हैं, ऑटो स्केलिंग करते हैं। लोड बैलेंसिंग मतलब क्या, कि जो भी सर्वर हेल्दी है, अभी ये समझो इसके ऊपर ज्यादा रिक्वेस्ट जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट को डाइवर्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सर्वर पे। तो ये लोड बैलेंसिंग हो गया। अभी समझो कि बहुत सारे सर्वर्स पे ये दोनों के दोनों सर्वर पे आ रहे हैं, तो हम लोग ऑटोमेटिकली वो स्केल होना चाहिए, तीसरा सर्वर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना चाहिए, जिसके अंदर ये जो भी हमने एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे वो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे इसमें भी आने चाहिए। तो उसको इसलिए नाम देते हैं ऑटो स्केलिंग, जो यहाँ पे हमको दिया हुआ है। इलास्टिक लोड बैलेंस, ये लोड बैलेंसर एकदम प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन पे मत जाना, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो एडब्ल्यूएस ने खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सब नाम दिए। लोड बैलेंसर से नाम से ही समझ में आ जाता है कि लोड बैलेंस करना है, रिक्वेस्ट इस सर्वर पे आ रहा है, वो सर्वर अगर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है या फिर ऑलरेडी उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो गई है तो दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाना। ऑटो स्केलिंग मतलब क्या, कि अगर दो सर्वर है और सीपीयू यूटिलाइज हो गया है दोनों सर्वर का, और हम और रिक्वेस्ट आते ही जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली तीसरा सर्वर स्केल करना। अभी स्टोरेज सर्विस, अभी इतने सारे एप्लीकेशन बन रहे हैं, जावा बेस्ड एप्लीकेशन बन रहा है, तो कौन उस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस कर रहा है, या फिर ये जो एप्लीकेशन है कुछ ना कुछ फाइल्स जनरेट करते रहेंगे। जैसे अभी लॉग्स हो गए, तो लॉग्स हमको स्टोर करने होते हैं, फिर बाद में ये जो भी कोई एप्लीकेशन पे एक्सेस कर रहा है एचएसबीसी के, उनकी इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करनी होती है। कौन कौन इसको एक्सेस कर रहा है उसका लॉग्स, कौन कौन इसको किस किस इंसान ने एचएसबीसी के वेब 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 एप्लीकेशन के थ्रू लॉग इन किया है या फिर अकाउंट क्रिएट किया है, उनकी इन्फॉर्मेशन हमको स्टोर रखनी है, क्योंकि अगली बार जब आएगा तो फिर से उसको रजिस्टर नहीं करना, तो इसके लिए डेटाबेस क्रिएट करना। तो स्टोरेज सर्विसेज है, तो ये बहुत प्रकार के स्टोरेज सर्विस है। अगर S3 हो गया, ईबीएस हो गया, ईएफएस हो गया, अभी इनके टाइप है, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू आर क्रिएटिंग दिस। S3 कब यूज करना है, जब तुमको बहुत सारे इमेजेस स्टोर रखने हैं, कुछ ऐसा स्टैटिक कंटेंट है, जैसे कि अभी आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, उसमें कोई कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं तो चेंज नहीं होते हैं, वो वैसे के वैसे ही है, उनको बस अपडेट किया जाता है। आज समझो एप्पी फिज की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है, तो उसका एक इमेज वहां पर चिपका हुआ है। बाद में ऋतिक रोशन हो गया तो उसका वो इमेज वहां पर चिपका है, तो वो कहाँ से रिट्रीव हो रहा है, तो वो इमेजेस जो है वो कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए S3 में बकेट्स क्रिएट करते हैं, बकेट्स के अंदर वो इमेजेस होते हैं। ईबीएस कहाँ पर यूज किया जाता है, सर्वर के ऊपर एडिशनल स्टोरेज के लिए। इस सर्वर को ये एडिशनल स्टोरेज चाहिए, जैसे तुम हार्ड डिस्क अटैच करते हो उसके जगह पे ईबीएस यूज करते हो। तो ये कैसे करना है, ये कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ये सेटअप कैसे करना है, ये हमको देखना है। दूसरा एडब्ल्यूएस सीएलआई के थ्रू, मेजोरिटी अभी हम सीएलआई पे नहीं जाते, हम लोग को समझना है कि ये पर्टिकुलर पर्पस क्या है इसका, तो हम लोग यहाँ पर कमांड लाइन टूल है, कमांड लाइन टूल के थ्रू भी हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं जो हम कंसोल के थ्रू करते हैं। तो अभी S3 बकेट हो गया, ये स्टोरेज टाइप्स हो गए, ये यहाँ पर नहीं चाहिए था। अब ये डेटाबेस और नेटवर्किंग, अभी नेटवर्किंग के अंदर रहने देते, पहले ये डेटाबेस पे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि इन्फॉर्मेशन हमको स्टोर रखनी है, परमानेंट मतलब परसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको स्टोर रखनी है हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल बाद अरे मैंने तो बैंक अकाउंट ओपन किया था, वो मेरा लॉगिन और क्रेडेंशियल भी मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि बैंक का कस्टमर लॉस होगा, तो उनको मॉनेटरी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमको इन्फॉर्मेशन स्टोर रखनी है, तो उसके लिए डेटाबेस क्रिएट करना है। ये स्टोरेज और इस स्टोरेज में फर्क है, ये जो यहाँ पर ये जो स्टोरेज सर्विसेज है ये अलग है और ये अलग है। ये हम जब कोर्स स्टार्ट होगा तब हम आगे देखेंगे। नेटवर्किंग के अंदर जैसे मैंने बताया था कि हमको खुद का नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। जो भी हमारा कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो एचएसबीसी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करेगा। उस नेटवर्क के अंदर किसको किसको एक्सेस है, कंपनी के इंडिविजुअल्स ही उस पर्टिकुलर सर्वर को, उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाए और उसको सिक्योर रख पाए। और एप्लीकेशन को कौन एक्सेस कर सकता है, कहाँ से एक्सेस कर सकता है, उसके लिए हमको नेटवर्किंग का नॉलेज चाहिए। दूसरा मॉनिटरिंग हो गया। हम अ, अभी जैसे मैंने यहाँ समझो वेबसाइट पे जाता हूँ, समझो ICICI.com पे मैं जा रहा हूँ और वो कुछ आउटपुट आ ही नहीं रहा है,
स्टेटस कोड आ रहा है कुछ भी 404 504 वेबसाइट नॉट अवेलेबल ऐसा करके समझो आ रहा है, तो जब मैं ब्राउजर से चेक करूंगा तभी मेरे को पता चलेगा कि अरे वेबसाइट तो डाउन है। लेकिन अगर हम आईसीआईसी में या फिर एचएसबीसी में काम कर रहे हैं तो हमको पहले से ही पता चलना चाहिए, जैसे ही वेबसाइट डाउन होगी हमको पता चल जाना चाहिए कि वेबसाइट डाउन है, कुछ तो गड़बड़ है, हमको करना पड़ेगा, हमको कुछ तो एक्शंस लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के अंदर किसको एक्सेस देना है, इसके लिए आईएमए सर्विस है। मॉनिटरिंग करना है हमको, सर्वर मॉनिटर करना है, एप्लीकेशन मॉनिटर करना है, कौन पर्टिकुलर, अभी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनमें से किसने कौन सी एक्टिविटी की थी जिसके कारण सर्विस डाउन हो गई वो पता करना है, तो उसके लिए अलग से एक सर्विस है। नोटिफिकेशन आने चाहिए हमको कि अगर समझो कुछ हमने डिप्लॉय किया है तो डिप्लॉय करके अगर फेल हो गया या फिर डिप्लॉय सक्सेसफुल हो गया तो भी हमको नोटिफिकेशन आने चाहिए, इसलिए हमको एसएनएस ये एक सर्विस का यूज करना है। तो ये सारे सर्विसेज के नाम है, हम लोग बस ओवरव्यू में देख रहे हैं कि हमको क्या करने वाले हैं इसके अंदर, इसमें नाम पे फोकस नहीं करना है, हमको क्या क्या करना है, क्या क्या हमारा जॉब रोल है वो हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं अभी है। अभी गिट के अंदर कौन से डेवॉप्स के अंदर कौन से टूल आ जाते हैं, तो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे बस हम लोग उतना देखते हैं। जैसे गिटहब हो गया, इनका क्या मेन पर्पस है, जो भी डेवलपर कोड लिखता है उसको रिमोटली स्टोर करके रखने, वो बस खुद के लैपटॉप पे रख लेगा तो क्या ही फायदा। एक डेवलपर एक फीचर पे काम करता है ऐसा नहीं, मतलब समझो कि यहाँ पर मेरा डायग्राम जो निकाला था, ये डेवलपर काम कर रहा है, ये अकेला ही काम कर रहा रहेगा उस पर, ऐसा तो नहीं रहता है। मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल लोग एक साथ काम कर पाए इसलिए रिमोट पे एक रिपोजिटरी होती है, मतलब एक स्टोरेज होता है जहां पर तुम तुम्हारा सोर्स कोड जो लिखा हुआ है वो तुम स्टोर कर सकते हो, तो वो गिटहब हो गया। जेनकिंस हो गया, ये जो मैंने जैसे प्रोसेस बताई थी कि सॉरी, डेवलपर के लैपटॉप से लेके इस सर्वर तक जाने तक का जो कंप्लीट जो प्रोसेस है, इसको ऑटोमेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जेनकिंस का यूज करते हैं। एक मिनट, फिर इसमें अभी ये जो है, अभी मैं ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये है नहीं, मे वन इसका पर्पस क्या है, ये अलग से टूल है जो जावा बेस्ड एप्लीकेशन को बिल्ड करने में काम आता है। दूसरा डॉकर हो गया, टेराफॉर्म हो गया, अगर अभी जो हम लोग सीखेंगे इनिशियली एक डेढ़ महीना हम लोग यूआई के थ्रू एडब्ल्यूएस में अकाउंट क्रिएट करेंगे, और यूआई के थ्रू हम लोग जो भी चीजें सर्विसेज क्रिएट करेंगे वो यूआई के थ्रू सीखेंगे। फिर एक बार उसके अंदर हमारा हैंड्स ऑन अच्छा हो गया, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, मतलब कोड के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। एडिशनल डेवऑप्स टूल्स में मतलब ये तो एडिशनल में नहीं, लेकिन ये तो प्राइमरी हो गया। जैसे मैंने अभी आपको विंडोज लैपटॉप यूज करते आता है, तो अभी हमको क्या देखना है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आनी चाहिए, तो हमको लिनक्स सीखना पड़ेगा, लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स हमको सीखने पड़ेंगे। शेल स्क्रिप्ट हो गया, अ, ये क्या है शेल स्क्रिप्ट, जैसे विंडोज में तुम कुछ भी यहाँ पर जैसे यहाँ पर पेंट लिख रहे हो तो तुमको पेंट दिख रहा है, वैसा ही लिनक्स के अंदर कुछ कमांड्स होते हैं, तो वो हमको, एक मिनट बस। हेलो, सॉरी सॉरी, जैसे हम लोग कहाँ पे थे, ये लिनक्स में थे, तो लिनक्स से कुछ कमांड्स होते हैं वो हमको पता करने हैं। शेल स्क्रिप्ट मतलब क्या है, ये लिनक्स के ऊपर ही हमको जब भी स्क्रिप्ट्स क्रिएट करने होते हैं, तो लिनक्स जैसे हमको कोई भी चीज ऑटोमेट करना है, अभी हम लोग को यहाँ पर विंडोज में कुछ भी करना है, मेरे को पेंट्स में जाना है, पेंट्स में जाकर वो पर्टिकुलर चीज, या फिर एक्सेल में जाना है, एक्सेल में जाकर वो पर्टिकुलर टास्क मेरे को मैन्युअली कंप्लीट करना है, तो अगर ये ना करके मेरे को अगर डायरेक्टली वो चीज ऑटोमेट करनी है,
या फिर कोई भी टास्क शेड्यूल करना है। शेड्यूल करना है मीन्स जैसे कि अभी जैसे मॉनिटरिंग के अंदर ही ये सॉरी ये सर्वर है, इस सर्वर के अंदर हमारा एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन को मेरे को बार बार चेक करते रहना है कि ये अप है कि नहीं। तो ये हम कुछ लिनक्स के कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं। ये जो लिनक्स के जो कमांड्स है, इसको अगर हम एक पर्टिकुलर फाइल में रखेंगे और उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो बार बार चेक करते रहेगा कि ये पर्टिकुलर एंड पॉइंट अप है कि नहीं। तो उसको क्रॉन टैब बोलते हैं। कुछ कमांड्स होते हैं क्रॉन टैब जैसे, जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर फाइल को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट को चेक करते रहेगा। तो ये हो गया मॉनिटरिंग का पार्ट। तो फिर बाद में टेराफॉर्म के बाद में कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस पे अभी नहीं जाते हैं, पहले तो बेसिक ही हमको पता नहीं था, हम लोग डायरेक्ट कुबरनेटिस पे क्या जाएंगे। जब हमारा 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम कुबरनेटिस के बारे में बात करेंगे। डॉकर क्या है, कुबरनेटिस क्या है। अभी पहले सबसे पहले सर्वर, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, गिटहब, ये सारी बेसिक चीजें हमको समझ में आएगी, तब हम लोग उसके बारे में तब हम उस पर हैंड्स ऑन हमारा अच्छा हो गया। फिर बाद में हम डॉकर, कुबरनेटिस, हम लोग क्यों माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के ऊपर गए। अभी जो चल रहा है, अभी चल रहा है मीन्स अभी कुछ कंपनी जो है वो मोनोलिथिक, अभी तुम अगर जाओगे सर्च करोगे तो मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विस। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए डॉकर और कुबरनेटिस, ये क्यों लगता है। तो ये अब डिस्कस करके कुछ फायदा ही नहीं है, तो मतलब वैसे भी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो जब हमारे 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम डॉकर कुबरनेटिस स्टार्ट करेंगे। ये सारी की सारी चीजें हो जाने के बाद प्रोजेक्ट्स है। तो एंड टू एंड डेवऑप्स रिलेटेड एक प्रोजेक्ट और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे मैंने बताया, सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग कंपोनेंट हो गए, सिक्योरिटी कंपोनेंट हो गए, लॉग्स कैसे मॉनिटर करोगे, मॉनिटरिंग कंपोनेंट हो गए, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा CI/CD का, डेवऑप्स का, जेनकिंस टूल, ये सारे जो भी टूल्स मैंने यहाँ पर बताए, यहाँ पर जो सर ने लिखे हुए जो भी टूल्स, उनको इंटीग्रेट करके एक साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो गई। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हम लोग देखेंगे। बस ऐसा ही नहीं कि यही 2 प्रोजेक्ट देखेंगे, बीच बीच में जैसे जैसे हम लोग एक मेजर मेजर सर्विसेज कंप्लीट करते रहेंगे, उसके अंदर भी मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स हम लोग कवर करते ही रहेंगे। ओके, सो ठीक है। इसमें आपका कुछ डाउट है क्या? अभी मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ। हेलो। देखो मतलब सबसे पहले, मतलब अगर आपको कुछ भी चीज सीखना है, मतलब डाउट नहीं होगा तो भी अगर आप डिस्कस कर सकते हो, जैसे कि आप किस बैकग्राउंड से हो, या फिर आपको कुछ दिक्कत आई जो मैं समझा रहा था। मतलब मैं तो एकदम सिंपल इंग्लिश में समझा रहा था। कभी कभी इंग्लिश में समझाते टाइम चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके समझाना पड़ता है। तो क्योंकि कि वो फिर ही समझ में आएगा। क्योंकि पहले दिन में अगर मैं एकदम ही इन डेप्थ टेक्निकल चला जाऊं तो ऐसा लगेगा कि अरे ये ज्यादा ही ओवरवेलमिंग हो गया। तो इस रिलेटेड अगर कुछ डाउट है, कि अगर ऐसा डाउट है तुमको कि मैं हम लोग ये कर पाएंगे कि नहीं, तो नहीं, कोई भी कर सकता है। मतलब अ, किसी भी ब्रांच का आदमी रहे, ये सीख ही सकता है। और दूसरा कि ऐसा कि सर हम लोग अगर ये आपका अगर कोर्स हम लोग कर रहे हैं तो इसके अलावा हम लोग और कुछ रिसोर्सेज देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं। हम लोग खुद ही रिकमेंड करेंगे आपको यूट्यूब पे कि अरे ये वाला यूट्यूब का कोर्स है, ये आप देख सकते हो। सिर्फ आपको कहीं पे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा। जो भी जो इंडस्ट्री ग्रेड या फिर जो भी बेसिक्स या फिर एडवांस प्रोजेक्ट रहेंगे वो हम लोग कवर करेंगे। सिर्फ इतना कि कुछ एक्स्ट्रा अगर हमको खुद को ऐसा लगा कि नहीं ये यूट्यूब पे अच्छा है, तो ये वहां से भी देख ही सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपको कुछ चाहिए तो अगर इसके अलावा मतलब क्लासेस रिलेटेड अगर जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो सचिन सर आपको पूरा कवर करेंगे। और अगर थोड़ा फास्ट हो रहा होगा अभी तो बता देना, मतलब ऐसा। और आपका डाउट आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश कौन सी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हिंदी में ही पूछो, मराठी में आप डाउट पूछ सकते हो, इंग्लिश में भी पूछ सकते हो, हिंदी में भी पूछ सकते हो। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगी उस लैंग्वेज में आप आपका डाउट पूछो, ठीक है। और सब एशियन सब इधर इंटरेक्ट होते सब। मतलब ऐसा मतलब हर बार हमें आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। बीच में किसी को भी हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
मतलब पूरा सेशन क्या होगा, इंटरेक्टिव होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं लाइव चल रहा है आप सुन रहे हो, वैसा नहीं, ठीक है। डाउट है क्या अभी कुछ सिलेबस में, या तुम्ही क्लास का? सर यामध्ये कोडिंग येते का? कोडिंग डेव्हऑप्समध्ये कोडिंगची काही गरज नाही, तुम्हाला स्क्रिप्ट यायला पाहिजे, सेल स्क्रिप्टिंग, ठीक आहे, ते आहे याच्यात कव्हर केलेलं आपण स्क्रिप्ट. कोडिंगचं आपलं काम नाही, कोडिंगचं काम आहे डेव्हलपरचं काम आहे ओके. हे टूल्स सेल फक्त स्क्रिप्टिंग यूज आणि करायचे काय? काय. टूल्स फक्त यूज करायचे काय? हा टूल्स यूज करायचं, तुम्हाला काही पाईपलाईन लिहावं लागतील, जिथं तिथं लॉजिक लावायचं, तुम्हाला AWS क्लाउडवर काही काम असेल, म्हणजे जे ओके. रिअल टाईम आय टीमध्ये जे चालू आहे ते तर आम्ही तुम्हाला सांगणारच आहेत, कारण की आम्ही तेच करतो रिअल टाईम आय टीचं आमचं जॉब करून आम्ही पार्ट टाइम हा क्लास घेतो. आम्ही ॲट अ टाइम एकच बॅच स्टार्ट करतो. आता ही बॅच संपल्यानंतर दुसरी बॅच स्टार्ट करू आम्ही याच्यानंतरची. आणि आपल्याकडे ही बॅच मल्टिपल ही बॅच कितीपर्यंत संपल? ही ऑगस्ट? अजून ही स्टार्ट केली ना, आता 4 महिने अराउंड लागतील. आता काय मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, आज ऑगस्ट एंडिंग, ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरच्या फर्स्ट वीकला संपून जाईल ती. आणि इन कधी बिटवीन जर काय स्टार्ट करणार आहेत आता काही एक आता? दोन डेमो होतील, आणि मला वाटतं 1-2 तारीखपासून कंटिन्युअसली ॲडमिशन झाले स्टार्ट करून देऊ बॅच. आता 1-2 स्टार्टिंगला जे डेमो आहेत ते होतील, नंतर तुमचं बॅच स्टार्ट होऊन जाईल. सर हे वीकेंडला राहतील क्लासेस की डेली राहतील? नाही, डेली, मंडे टू फ्रायडे, आणि संडेला तुमचं एक्सटर्नल मॉक इंटरव्ह्यू राहील, ठीक आहे. ते आपण पॉईंट कव्हर करणारच आहेत, काय आहे ते, कसं क्लास असेल, कसं काय आहे ते गोष्टी. आणि टायमिंग क्लासचा एक तर मॉर्निंगला असेल किंवा इव्हनिंग 8 नंतर असेल, कारण की आम्ही सगळे वर्किंग आहोत, तर मध्ये तर काय असं पॉसिबल नाही होणार आम्हाला. नॉन वर्किंग ओके. आवर्समध्ये तुमचे क्लास असतील, एक तर मॉर्निंग 8-9च्या मध्ये किंवा इव्हनिंगला 8च्या नंतर. ते टाइम तुम्हाला जे पेपर टाइम असेल सगळ्याचं मत घेऊन आपण ते टाइम डिसाईड करू. रेकॉर्डेड सर असणार काय? हा लेक्चर व्हिडिओ? रेकॉर्डेड, हा रेकॉर्डेड लेक्चर असणार, म्हणजे क्लास आपली लाईव्ह असणार, पण कोणी जर मिस केलं इन बिटवीन तर तुम्हाला ते रेकॉर्डिंग भेटणार, ठीक आहे. म्हणजे तसंच रेकॉर्डिंग सगळ्याला भेटणारच आहे, आज क्लास झालं उद्या रेकॉर्डिंग, म्हणजे संध्याकाळीच रेकॉर्डिंग अपलोड होऊन जाईल. ओके. फी स्ट्रक्चर काय आहे? तशी आपल्या आधीची बॅचची फीस होती 35,000, म्हणजे किती 5-6 बॅच झाल्यात आपल्या, त्याची फी होती 35,000. तर ह्या बॅचला आम्ही फी किती केली, 30K केली, 30,000. जर तुम्ही डेमो झाल्यानंतर लगेच जर तुम्ही तुमचं सीट जर बुक करत असेल तर तुम्हाला 5,000 ऑफ भेटेल, म्हणजे तुमची टोटल फी असेल 25,000. मिनिमम फीज तुमची 25,000 असं ग्रेड धरून चाला. जर तुम्हाला थोडं लेट फी केली तुम्ही तर 30,000, आणि इन्स्टॉलमेंटमध्ये तुम्ही फी भरू शकता, ठीक आहे. ओके. जर तुम्ही सर समजा केलं रिअल 5,000 भरून आज उद्या काही 2-3 दिवसात, तर तुमची फी असेल 25,000. 15+10 असं इन्स्टॉलमेंट तुम्ही करू शकता, ठीक आहे, 2 इन्स्टॉलमेंटमध्ये. सर प्रोजेक्ट कसे असणार? इंडस्ट्री बेस्ड? इंडस्ट्री बेस्ड आम्ही जे काम करतो ना, आम्ही रिअल तर तिकडचं दाखवू शकत नाही स्क्रीन तुम्हाला, पण त्या रिलेटेड आम्ही तो प्रोजेक्ट सेटअप करून तुम्हाला दाखवेल. म्हणजे ओके. लेटेस्टमध्ये आम्ही जे प्रोजेक्टर काम केले हे सगळ्या गोष्टी, आणि त्यासाठी तुम्ही तुम्हाला काय डेव्हऑप्सच करता काय? सगळे डेव्हलप्स करतो आम्ही. आता आमचं हा. मित्राचं एक सर्कलच आहे, सगळे आम्ही डेव्हलप्सच काम करतो. 7-8 सगळ्याला एक्सपिरियन्स आहे सगळे. हा. अभिनव सर असेल, प्रसाद सर असेल, सर मोहन सर, प्लेसमेंट? म्हणजे प्लेसमेंट एक तर जिथं कुठं ओपनिंग असेल तसं तुम्हाला रेफर करणार आम्ही. आणि दुसरं हा. म्हणजे तुमचं समजा करिअर गॅप असेल तर काही कंपन्याबरोबर आमचे टायप आहेत, त्यांच्याकडून ॲज अ एक्सपिरियन्स पर्सन दाखवून तुम्हाला तिथून नोकरी प्रोफाईल, लिंक्डइन किंवा इकडे ओपनिंग असेल त्यानुसार तुम्हाला तशी कॉल प्रोव्हाइड करणार. आणि जे एक्सपिरियन्स लेटर आहे ती आमचं नाही, आमच्याकडून दुसऱ्याकडून आम्ही घेऊन देतो, तर ते एक सॅलरी घेतील. जर आपले क्लास स्टुडंट असेल तर 10,000 ते कमी घेऊ शकते, 5-10,000. म्हणजे तुमचं ओके. सिलेक्शन झालं, तुम्हाला ज्या टायमाला डॉक्युमेंट सबमिट करायचे त्या टायमाला त्यांच्याकडून जेव्हा डॉक्युमेंट घेऊ, तर आपला क्लासचा जर स्टुडंट असेल तर त्याच्याकडून 10,000 आपण कमी घेतो त्यांच्या, ठीक आहे. समजा तुम्हाला 9 लाखाचा पॅकेज भेटला तर तुमची सॅलरी किती ती 1 महिन्याची, त्याच्यातून 10,000 अशी कमी द्यायची त्यांना, जर क्लासचा स्टुडंट असला तर. आणि जे तर रिअल टाइम मिनिमम पॅकेज किती आहे काय डेव्हऑप्सला? मिनिमम पॅकेज? आता मिनिमम आमचं 9 लाखाचे कॅन्डिडेट आहे, 9, आणि काही आता एक प्रेशर झाली तिला 3च भेटला समजा पॅकेज, तर ॲव्हरेज 18 लाख ओके. पण पॅकेज तुम्हाला भेटू शकतं, 10 लाख बी भेटू शकतं, 9 लाख असं आहे, ठीक आहे. ओके. म्हणजे एक्सपिरियन्स लिहायचा मिनिमम 9 लाख धरून चला तुम्ही. म्हणजे फुल स्टॅकच्या प्रमाणे?
फुल स्टॅक पेक्षा पण जादा पण भेटते. ठीक आहे, मला माहित नाही फुल स्टॅकचं कसं आहे. आता 5-6 वर्ष एक्सपिरियन्स वाल्याला 30+ पण पॅकेज आहे डेव्हॉप्स मध्ये. तर तुमचे हा. काही फ्रेंड सर्कल असेल इट कोणी असेल डिपेंड्स डेव्हॉप्स की तुम्हाला किती एक्सपिरियन्स आहे ऍक्च्युली. ओके, त्यानुसार पॅकेज खूप व्हॅरी होते आणि ऑपॉर्च्युनिटी कशी मिळते तुम्हाला त्यावर पण ते व्हॅरी होते थोडं. आणि मी असं नाही म्हणत तुम्ही एक क्लास गोष्ट केला तुम्हाला तुमच्या लेवलला पण एफर्ट्स द्यायचे. ठीक आहे, आता आम्ही सगळी तर तयारी करून घेणार. तुमचं इंट्रू डायरेक्ट जर दिलं तुम्ही तर तुम्हाला इंट्रू कसं हँडल करायचे काय आहे, तसे त्यासाठी आम्ही एक्सटर्नल मॉक इंट्रू ठेवले दर रविवारी. तर तुम्हाला ते कसं ओके इंट्रू द्यायचं, काय बोलायचं, सगळ्या गोष्टी पूर्ण गाईड करणार. पण तुम्ही नुसतं क्लास करणार आणि नंतर दिवसभर अभ्यास नाही काय नाही, दुसऱ्या दिवशी अजून क्लासला येणार, तसं नाही चालणार. तुम्हाला काही एफर्ट द्यावाच लागतील. आता ओके दिवसेंदिवस कॉम्पिटिशन वाढलेलं आहे, तर त्या हिशोबाने आम्हाला पण हो तुमच्याकडून तसं प्रिपरेशन करून घ्यावं लागते. ओके. सर पाईपलाईन मध्ये काय असतंय सॉफ्टवेअर? पाईपलाईन मध्ये आपलं जेनकिन्स आहे ना, जेनकिन्स मध्ये आपलं फ्री स्टाईल जॉब हे ते करतो ना, तसे पाईपलाईन लिहून ती गोष्टी आपण ॲटोमेशन करतो. पाईपलाईन म्हणजे असं एक ओके ॲटोमेशन करते, याच्यात लिहून टाकायचं आपल्याला काय काय करायचं, ते लॉजिक लिहून टाकायचे ते पाईपलाईन मध्ये. तर ते ओके. पाईपलाईन रन केली की ते सगळं ॲटोमेशन होऊन लॉजिक जातं. डेव्हलप करायला लागतंय का तिथे? काय काय लॉजिक डेव्हलप करायला लागतंय काय? हा, लॉजिक यायला पाहिजे ना, तुम्हाला नेमकी करायचंय काय, तर ते तुम्ही ते पाईपलाईन मध्ये एक स्टेज मध्ये सांगू शकता. तुम्हाला गेट रिपॉझिटरीचं कनेक्शन करायचं, पुढं काय काय गोष्टी करायच्या ते तुम्ही ओके पाईपलाईन मध्ये तसं लिहू शकता. ते तुम्हाला काही जरी नाही आलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही, आम्ही बेसिक पासून स्टार्ट करणार सगळ्या गोष्टी. म्हणजे असं नाही तुम्हाला हेच यायला पाहिजे आणि तेच यायला पाहिजे, तसं काहीच रिक्वायरमेंट नाही. कारण की आपण कोर्स डिझाईन करतो ना, तुम्हाला असं गृहीत धरून चालतो आम्ही, तुम्हाला काहीच माहित नाही डेव्हलपचं, त्या लेवलला आम्हाला स्टार्ट करावं लागते. आणि ॲडव्हान्स नाही ते लेवलपर्यंत आय जरा टीमध्ये. पाईपलाईनचं थोडं म्हणतात अवघड वगैरे हार्ड असते थोडं. पाईपलाईन अवघड कुठं मलाच अजून कळलं नाही, कारण की एकदम सिंटॅक्स सोपे आहेत, फक्त तुम्हाला लॉजिक कुठं काही गोष्टी करायच्यात. हा हा तेव्हा अवघड दोन म्हणजे प्रकारचे पाईपलाईन आहे, एक हम्म, डेटा पाईपलाईन, एक डेव्हऑप्सची पाईपलाईन. ठीक आहे, डेटा पाईपलाईन ते या कोर्सच्या रिलेटेड नाही, ते डेटा इंजिनिअरिंग रिलेटेड आहे. सो ते थोडं डिफिकल्ट आहे. हे कोर्स वेगळा आहे, हे डेव्हऑप्सचा कोर्स आहे. ओके. सर एक स्टार्ट गोष्ट कधीपासून जस्ट होणार मी आहे बॅच? एक गोष्ट जस्ट मी ऍड करून देतो सचिन. एक जे लोक पण आता आहे कॉलवर, ठीक आहे, इथे तुम्ही फक्त व्हॉट्सअपचं तुमच्याकडे डिटेल्स असतीलच किंवा आता पण सचिनने टाकलेले डिटेल्स, तर तुम्ही प्लीज व्हॉट्सअपवर आम्हाला मेसेज करून द्या की आय अटेंडेड डेमो. कारण की तुम्ही जेव्हा डिस्काउंट बोलले ना सचिन, तर हा आम्हाला माहित राहील की तुम्ही अटेंड केलं डेमो है ना. तो प्लीज तुम्ही ओके एकदा मेसेज करून द्या आता लगेच व्हॉट्सअपवर. ओके. हा चल. ठीक है। इधर किसी का मतलब हिंदी का कोई मतलब मराठी समझ में आती ना सबको? यस यस सर। यस मतलब सर. किसी का कोई कंसर्न रहेगा तो बोल सकते हैं, इधर हिंदी में कवर कर लूंगा मैं। थोड़ा कैसे होने वाला पैटर्न क्या है हमारा, ठीक है ठीक है, हिंदी में वी बोल कैन देता कंसिडर एनी अ, लैंग्वेज में। सर मराठी हूँ। नहीं समझ में आती। हाँ ओके, हिंदी में क्लास होने वाला है। अभी क्या है, जिसको किसी को डाउट रहेगा तो वो मराठी में भी पूछ सकता है, हिंदी में भी डाउट का हम कौन सी भी लैंग्वेज में कवर कर लेंगे, ठीक है। पर क्लास हमारा हिंदी में होगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सर ऑल सिलेबस घेणार का कव्हर करणार? हा, सिलेबस सगळं कव्हर करणार. तुम्हाला ओके रिअल टाइम जेवढं लागणार आहे ॲज अ एक्सपिरियन्स पर्सन म्हणून, तेवढं सगळ्या गोष्टी आम्ही कव्हर करणार. जिंट्रूला जेणेकरून ओके काय गोष्टी डिमांडमध्ये, मार्केटमध्ये काय चालू है, मतलब मार्केट क्या डिमांड कर रहा है आपसे, मतलब मार्केट में कौन सी चीज़ें फेमस है, वो सब इधर कवर करने वाले हैं, ठीक है। डेवॉप्स है, डेवॉप्स में क्या क्या पूछने वाले हैं। सपोज हमने कुछ नया टास्क किया, वो मार्केट में पूछ रहे, तो हम ऐड कर देंगे ना बैच में डायरेक्टली। ओके और हमारे पास मल्टीपल ट्रेनर है, ऐसा ट्रेनर का कोई प्रॉब्लम नहीं। मोस्ट ऑफ द परसा सर, मी और तीनों ही कवर कर लेते हैं, पर कुछ एक्स्ट्रा लगा तो हम वो भी ट्रेनर कर लेंगे आपको कवर। मतलब कुछ गाइडेंस चाहिए आपको, वो भी हो जाएगा। और एक्सटर्नल मॉक इंटरव्यू रहेगा, वो बाहर से कोई पर्सन आएगा, वो आपका इंटरव्यू लेगा हर संडे को। ऐसा नहीं 5 मिनट 10 मिनट इंटरव्यू लेगा, जो रियल टाइम रहेगा इंटरव्यू वैसा होगा आपका, ठीक है। मतलब हमारी बैच का स्ट्रेंथ क्या रहता है, 50 नहीं लेते हम, 15 स्टूडेंट लेते, उससे ज़्यादा हमसे हैंडल नहीं होएगा। मतलब क्या होता है, हमको सबका डाउट सॉल्व करना पड़ता है, किसी को कुछ क्वेरीज रहेगी, ये सब देखना पड़ता है ना। तो इसीलिए 15 की ही बैच रहेगी, ज़्यादा नहीं रहने वाले से कुछ 15। मतलब 15 से एक भी किसने किया तो वो नहीं होगा हमसे पॉसिबल, क्योंकि सबको मॉक इंटरव्यू भी देखना पड़ता है ना। मॉक ओ इंटरव्यू, किसी का डाउट रहेगा, इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए ना। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे, ऐसा तो हमें भी बोर हो जाता है ऐसा। मतलब सेशन कैसा होना चाहिए, इंटरेक्टिव, मतलब हम ऐसे डिस्कस करें,
खुल के हम डिस्कस कर सकते हैं। आपको कुछ डाउट आया, आप खुल कर हम कभी भी हमको कॉल कर सकते हो। मतलब ऐसा हमारा सेशन रहेगा, ठीक है। ये देखो और कोई डाउट है क्या? मतलब ये कैसे क्लास होने वाले वो बताता हूँ मैं। मतलब कोडिंग प्रोजेक्ट ये। कोडिंग का कि गिटहब है उसमें, तो हम्म। कोडिंग क्या जरूरी है क्या वहाँ पे? नहीं नहीं, कोडिंग की जरूरत नहीं। गिटहब क्या है? सपोज आपका गूगल ड्राइव है, पता है आपको, उस उधर क्या करते हो आप? फोटो स्टोर करते हो ना। तो गिटहब पे उधर एक सोर्स कोड स्टोर करते हो आप, एक जगह आपका कॉमन लोकेशन। उधर आप क्या करते हो? गिट, उधर आप सब सोर्स कोड प्रोजेक्ट का जो भी डेटा रहेगा, सोर्स कोड रहेगा या जो भी रहेगा डेटा, वो आप क्या करते हो? गिटहब पे स्टोर करते हो। तो उसके लिए हमें क्या क्या ऑपरेशन करना है एज अ डेवऑप्स, वो सब देखना है हमें इन डिटेल में। कुछ भी क्वेश्चन पूछने हो तो गिटहब पे वो सब कवर हो जाएगा आपका। हॅलो सर, हम्म। तुम्ही नोट्स वगैरे प्रोव्हाइड करता का? येस येस, नोट्स, काही समजा काही गोष्टी आपण स्क्रिप्ट पाईपलाईन जे होईल ते सगळं तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो मी। इंटरव्यूचे क्वेश्चंस, इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है रियल टाइम वाले, मतलब जो जो लोग स्विच ओके करते हैं, जो स्टूडेंट है, वो रियल टाइम वाले क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। विथ एक्सप्लेनेशन मैंने क्रिएट किया है सब, वो मिल जाएगा आपको। ओके ओके आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। हम जैसे मतलब यूट्यूब की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जरूरत पड़ी तब बताने वाले हम यूट्यूब का, मतलब उसकी जरूरत नहीं। जो रियल टाइम मार्केट के जो रिक्वायर्ड है वो सब वो कवर हो जाएगा आपको, ठीक है। मतलब जो ट्रेनर है, हमने भी बहुत बार स्विच किया है। हमने क्या क्या क्वेश्चन फेस किया है, क्या ऐड हुआ मार्केट में नया, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई, कुछ नए टूल्स आए, तो हम ये सिलेबस में ऐड कर दिए उसमें। मतलब वो कभी भी हम ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी जो हमारा सिलेबस है सब अपडेटेड है। आप नौकरी प्रोफाइल पे जाके देखो ना, नौकरी प्रोफाइल ओपन करो, उधर डेवऑप्स लिख दो, या तो वो कंटेंट देखो, उधर सब यही मिलेगा आपको उधर, ठीक है। पहले हमारे बैच में सर टेराफॉर्म नहीं फ्युचर था। मध्ये हम्म, क्या क्या सर फ्युचर और मध्ये जॉब असिस्टेंस अपॉर्च्युनिटी कैसे? आहे का? क्या क्या? और जॉब असिस्टेंस कैसे, मतलब कब कंपनीज कौन से हायर करते हैं उसका क्या है? अभी देखो, सपोज कौन सी कंपनी में कुछ ओपनिंग निकली, मतलब कुछ कंपनी के साथ टाइप है, उधर ओपनिंग रहेगी तो हम आपको क्या कर सकते हैं, उधर रेफर कर सकते हैं। या तो नई ओपनिंग रहेगी तो नौकरी प्रोफाइल ऐसा क्रिएट करने वाले जो की स्किल जो चाहिए मार्केट को, वो सब उधर अपडेट करने वाले हम। तो आपको इंटरव्यू के उधर से बहुत सारे कॉल आने वाले। मतलब ऐसा नहीं हो सकता सर मुझे कॉल ही नहीं आ रहा, वैसा नहीं हो सकता। ये जो स्किल है, जिसका गैप होगा करियर में, या तो कोई टेक्नोलॉजी करियर स्विच करने वाला है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है कोर्स। और जो फ्रेशर है, कभी कभी कुछ कंपनी आती है तो उधर हम डायरेक्टली ऐसा रेफर कर देते आपको। नहीं आया तो नौकरी प्रोफाइल, लिंक्डइन, यो मतलब क्या 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 लगता है, मतलब एज एक्सपीरियंस आपको क्या लगने वाला है, नौकरी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या स्किल ऐड करना है, क्या क्या लगने वाला है, वो सब चीजें हम बताने वाले हैं। वो एचआर सेशन, मतलब एचआर के साथ कैसे डिस्कस करना है, वो भी कवर करने वाले हम। मतलब टैलेंट एक्विजिशन, मतलब आपको कॉल करेंगे सर, मतलब आपको उनकी क्या रिक्वायरमेंट है आपसे पूछेंगे, वो पूछने वाले ना, कितना एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या किया, ये सब उन उन लोगों से कैसे हैंडल करना है वो भी हम बताने वाले। और नौकरी प्रोफाइल में क्या क्या चेंज करना है तब आपको कॉल आने चाहिए, वो भी हम बताने वाले। रिज्यूमे कैसे बनना चाहिए, रिज्यूमे में क्या क्या स्किल लगने वाली, वो भी हम आपको बताने वाले, ठीक है। और इंटरव्यू देना है, मतलब फाइनल एम क्या है हमारा, इंटरव्यू आपको क्रैक करना आना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका इंटरव्यू चला तो आपको सब आंसर, मतलब कैसे हैंडल करना है इंटरव्यू को, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। और हर संडे को मॉक इंटरव्यू रहेगा ना, उसमें आपको पता चल जाएगा एक्चुअली हो क्या रहा है इधर, मतलब कैसे इंटरव्यू को हैंडल करना है, वो आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 20 से 25 इंटरव्यू लिया अभी तक। वैसे हमारे कोई ट्रेनर है, कभी इंटरव्यू कंडक्ट करते, मतलब कोई स्विच करने के लिए इंटरव्यू दे रहा है, कोई इंटरव्यू ले रहा है, हमको पता होता है मार्केट में क्या लगता है, अभी क्या चाहिए मार्केट को, उसके मुताबिक हम आपका सिलेबस अपडेट करते हैं, ठीक है। और आपको सर गाइडेंस फ्युचर भी। मध्ये अपॉर्च्युनिटी आहे का? फ्युचर मध्ये तुम्ही डेव्हॉप्सला कोणाला विचार, कोणी जर ओके असलं त्याला विचारता डेव्हॉप्स कसं आहे म्हणायचं मार्केट, कोणी जर म्हणलं ना नाही डेव्हॉप चांगलं नाही, बिंदास करू नका तुम्ही, ठीक आहे। ओके कारण की आम्ही टेस्टिंगचं मध्ये बॅच स्टार्ट करणार होतो, पण म्हणलं ओपनिंग नाही, काही नाही, म्हणलं ठीक आहे, म्हणलं नको काय करायला, म्हणजे डिमांडिंग आहेत ती, ठीक आहे। ओके सध्या तर आमच्याकडे डेव्हॉप्स आहे आणि स्नोफ्लेक पण आहे, ते आदित्य सर ते कव्हर करतातच। पण सध्या जे जे डिमांडिंग आहे मार्केटमध्ये त्या गोष्टी आम्ही घेतो फक्त। कारण की एवढा ओके आमच्याकडे टाइम पण नाही बाकीच्या गोष्टीत, असं नाही का, आम्हाला ऑफिसचं पण जॉब करावं लागतं आणि क्लास प्लस हे सगळ्या गोष्टी, मॉक इंटरव्यू, हे भरपूर गोष्टी घ्याव्या लागतात।
मी लेक्चर घेतलं एक म्हणजे विषय संपला नाही, तिथं तुम्हाला गाईड बी करावं लागतं प्रॉपर कसं आहे काय नाही, कोणाचे काय डाऊट असले कोणी विचारू शकता, कसं सगळ्या गोष्टी बघावं लागतात ना. त्याच्यासाठी ॲट अ टाइम एकच बॅच घेतो आम्ही आणि ही संपल्यानंतर पुढच्या बॅचचा विचार करतो. सर हे क्लासेस ऑनलाईन असतील राईट? क्लास ऑनलाईन गुगल मीटवर लिंक ग्रुप तुमचा, आता ओके. तुमचं डेमो झाले, जे जे इंटरेस्टेड आहे ते तुम्ही व्हॉट्सअपवर पिंग करून द्या, इथं चॅट बॉक्समध्ये मी नंबर टाकला इथं. हा नंबर आहे. आणि तुमचं ऑफिस वगैरे असेल ना सर? ऑफिस होतं कोवर्किंग स्पेस आधी, पण आता सध्या ऑफिसवर कुणी थांबायला कोणाला एवढं टाइम बी नव्हतं, म्हणून सध्या ते बंद आहे ऑफिस आमचं. अच्छा. कारण ऑफिस म्हणले तिथं एक दोन जण असं थांबावं लागतं, आणि एवढं कसं आहे वर्किंग आहे सगळे लोक, तर ते हम्म. पॉसिबल होत नाही ना. ओके. आणि डेली किती आवर असेल क्लास? डेली 1 ते 1.5 तास. अभी देखो मैंने इधर इंक्लूड किया है डेली आपका लेक्चर्स, वो कंसेप्ट का है, सपोज आपका कुछ AWS का EC2 इंस्टॉल लॉन्च करना है, वो कितने 1 घंटा चला तो 1 घंटे में आपका क्लास हो जाएगा. कभी कभी कुछ कंसेप्ट के लिए 1.5 घंटा लगता है तो 1.5 घंटा हो जाएगा. हम्म. एवरेज आप 1 आवर्स ऐसा देख सकते हो. ठीक है. वीकली आपके 5 लेक्चर्स होंगे, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को आपको पढ़ाई करना है, और संडे को आपको मॉक इंटरव्यू देना है. ठीक है. ये देखो वीकली 5 लेक्चर्स, सब लेक्चर लाइव होने वाले. ठीक है. उसके बाद लेक्चर हो गया कंप्लीट, और रिकॉर्डिंग से स्टार्ट हो जाएगी, और उसके तुरंत 1-2 घंटे बाद वो रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे. उसके बाद आप किधर भी आपको डाउट आया तो लेक्चर देख सकते हो, तभी आपका डाउट सॉल्व नहीं हुआ तो दूसरे दिन हमारा लेक्चर रहेगा, या तो आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, या तो कॉल कर सकते हो ऐसा. ठीक है. ओके. हेलो. डेडिकेट डॉट सॉल्विंग सेशन भी आपको लगा, मुझे लगा आपको कुछ बहुत सारे डाउट है, एक सेशन दूसरे सेशन आप डाउट सॉल्विंग ऐसा ले सकते हैं. वो डाउट तो डिस्कस करना ही पड़ता है हमें. ठीक है. ऐसा नहीं आपको डाउट आया और वो डिस्कस नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता. मॉक ओके. डिस्कशन का ग्रुप रहेगा आपका. आप बोलोगे सर ये क्या है नया मॉक डिस्कशन ग्रुप, मतलब आप ग्रुप डिस्कशन पता है ना आपको, यस मतलब यस. वैसा आपको डिस्कस करना है. मतलब मैंने कुछ लेक्चर लिया आपको, आप लोगों में डिस्कस करना है, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल और एक्सप्लेनेशन स्किल इंक्रीज हो, इसके लिए मैंने ये मॉक डिस्कशन ग्रुप, मतलब 5 मेंबर का ग्रुप रहेगा, 2-3 गॉट. ग्रुप बनाते हैं हम, उसमें आप डिस्कस करोगे. हाँ मुझे क्या करना है, आपने क्या क्या, मतलब आप लोग सब इंग्लिश में उधर डिस्कस करोगे. कुछ किसी का डाउट, मतलब जनरल ऐसे डिस्कस करते हो ना आप, टेक्निकल नॉलेज इधर आप लोगों में भी ऐसा ट्रांसफर कर सकते हो. तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंट क्या है सेशन लेके मैं. और वीकली ओके. और एक्सटर्नल, साइमल्टेनियसली मतलब ऐसे नहीं होता राइट? मतलब कुबरनेटिस डॉकर मतलब साइमल्टेनियसली आप लोग नहीं नहीं लेंगे, नहीं, वन बाय वन कवर कर लेंगे राइट वन बाय टूल? वन, यस यस यस. साइमल्टेनियसली कैसे पॉसिबल हो सकता है, आपके पास भी नहीं. उतना टाइम चाहिए ना पढ़ाई करने. एक लेक्चर लिया मैंने तो उसको आपको हम्म. 2-3 घंटा तो पढ़ाई कर, 1-2 घंटा तो लगेगा पढ़ाई करने के लिए. ओके. साइमल्टेनियस ऐसा नहीं हो सकता. So one folk will cover one tool and then another will start, right? यस यस यस, सिक्वेंशियली होता है step. Okay. Okay, sir. Got it. Thank you. ये मॉक डिस्कशन वीकली एक्सटर्नल मॉक इंटरव्यूज, मतलब हर संडे आपका मॉक इंटरव्यू रहेगा. वो कौन लेगा, हम्म. जो एक्सपर्ट लोग रहेगा. कोई तो मतलब अभी हमारा डेवॉप्स का कोर्स है, तो हमारा कनेक्शन बहुत सारे आईटी में, मतलब कोई डेवॉप्स फ्रेंड या कोई आएगा तो वो आपका इंटरव्यू लेगा. ठीक है. रियल टाइम जैसे है, मतलब उसने ऑलरेडी कंपनी के लिए इंटरव्यू लिया है ना, वो पर्सन आएगा इंटरव्यू लेगा. मतलब आप बोलेगे सर इंटरव्यू क्या है, 5-10 मिनट में खत्म कर देते कुछ क्लास में, हमारे इधर वैसा नहीं रहता. ठीक है. जब तक आप हम्म. मतलब आधा घंटा तो चलेगा ऐसा, जो रियल टाइम जैसा चलेगा वैसे ही. मतलब Okay. ऐसा नहीं कॉमर्शियल ऐसा क्लास नहीं हमारा, मतलब जो रियल टाइम चाहिए आपको, जो जो चीजें आपको इंटरव्यू क्रैक करने की लगती है वो चीजें हम सब कवर करने वाली. मतलब ऐसा नहीं आपको कभी कभी क्लास का क्या रहता है, बाकी क्लास का आपको इससे कांटेक्ट करो, HR टीम को कांटेक्ट करो, इससे कांटेक्ट करो. ऐसा नहीं, डायरेक्टली आप किसी भी ट्रेनर को जो पढ़ा रहा है आपको उसको कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी डाउट रहा आपको. ठीक है. वैसा कर सकते हो. ठीक है. Okay. कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ रहेगा, प्लस माइनस 15 दिन पकड़ लो. क्यों, Okay. मतलब किस लिए 15 दिन, आप बोलोगे सर आप तो बोले 4 महीने, मतलब कभी कभी मार्केट में कुछ नई चीज आ जाएगी, कुछ नया एक कुछ ऐड हो गया, थोड़ा पर हम वो कवर कर लेते हैं, कुछ गाइडेंस लगा आपको बीच में, थोड़ा पर ऐसा कवर करना पड़ता है. ठीक है. 4 मंथ का क्लास रहेगा. ये तो नौकरी प्रोफाइल गाइडेंस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ये रिज्यूमे क्रिएट करके देंगे हम, नौकरी प्रोफाइल क्रिएट करके HR डिस्कशन कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन कैसे करना है, गाइडेंस, मतलब जो कुछ आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कुछ गाइडेंस चाहिए तो वैसा सब मिल जाएगा. मतलब हम सब लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसा हम में से कोई नहीं ऐसा मतलब वो जॉब नहीं कर रहा, सब IT में जॉब कर रहा है, सब एक्सपीरियंस पर्सन है, वही आपको पढ़ाने वाले. मतलब ऐसा मल्टीपल लोग हमारे इधर है. ठीक है. मतलब किसी से आपको गाइडेंस चाहिए, आप मुझे बोलो,
कौन सा भी सेशन में अरेंज करके दे सकता हूँ। ओके। सभी रियल टाइम होगा, मतलब द बुक कीज जैसा नहीं रहेगा, किताबें पढ़ रहे हो सारे, जो इन्वेस्टिंग को लगता है, इंटरव्यू वालों को जो चाहिए वो। तुमच्याच स्कोर ऑर्गनायझेशन मध्ये ठेवायचे उद्या ओपनिंग असेल 3+ एक्सपिरियन्स तर तुम्ही रेफर करणार का मला तिथे? 100%. मीच नाही, माझ्या मित्राच्या कोणत्याही कंपनीत असेल तिथे रेफर करतो. आधीच्या बॅचची एक मुलगी होती, ॲज अ फ्रेशर होती, माझ्या मित्राच्या कंपनीमध्ये ओपनिंग होती, डायरेक्ट त्याचा इंटरव्ह्यू शेड्यूल केला आणि त्यांचं झालं होतं हा, डिस्कशन. ते कसं ते इंटरव्ह्यू शेड्यूल करायलाच रेफरन्स लागतो मोस्टली. हम्म. आता कधी कधी अशी सिच्युएशन येऊन जाते, तुम्हाला समजा बायचान 3-3.5 वर्षाची एक्सपिरियन्स आहे, तुमचं जर प्रोफाईल चांगला असेल नोकरी प्रोफाईलवर. आता मी रिअल टाइम मध्ये मी काही इंटरव्ह्यू कंडक्ट केले होते आणि एक टॅलेंट ॲक्विजिशन वाली एक नवीन जॉईन केलं, त्याला माहित नव्हतं कसं फिल्टर लावायचं, कसं सर्च करायचं, काय काय सर्च करते, त्यांना की स्किल काय पाहिजे, हे सगळ्या गोष्टी मी प्रत्यक्षात तिथं त्यांच्यावर कनेक्ट होत असतो. म्हणजे ते माहिती आहे आयटीत काय चालू आहे, मधल्या गोष्टी काय काय ओपनिंग आहे, कशा असतात, काय स्किल लागतात, त्या सगळ्या गोष्टीचं मला माहिती असते त्याची. आणि कुठे जर ओपनिंग असली, रेफरन्स केलं, ते इंटरव्ह्यू तर होतीलच शेड्यूल तुमचं. जर प्लस मायनस जर नसेलच रेफरन्स, आता असं नाही म्हणू शकत मी सारखंच रेफरन्स असते माझ्याकडे. आता माझ्याकडे 2-3 रेफरन्स आहेत. बँगलोर लोकेशनला काही ओपनिंग आहेत, 3-4 वर्ष एक्सपिरियन्सला डायरेक्ट रेफरन्स करून टाकतो. म्हणजे असं जिथं ओपनिंग असेल तिथं. पण कधी कधी काय होतं, कधी कधी ओपनिंग नसेल तर मी कसं करणार ना असं डायरेक्ट त्या टायमाला बरोबर. नोकरी प्रोफाईलवरून किंवा काहीतरी प्रोफाईल बघावं लागतात आपलं, कसे तुम्हाला नाही, इन केस क्वालिफिकेटिव्ह. बोलते. हा, ऑफकोर्स तसं म्हणजे मी नाही पकडत, कन्सिडर करून नाही झालं ते. इन केस असेल तर विचारलं. नाही नाही, असेल तर 100%. हम्म. जर आपण एक्सपिरियन्स लावला तर एक्सपिरियन्स लावला तर चांगली गोष्ट आहे की, जर गॅप असला तर एक्सपिरियन्स लावा ना. आपण शिकतोय काय, रिअल टाइम मध्ये जे कंपनीत काम करायचं तेच तर शिकतोय ना आपण, असं वेगळं काही नाही आपलं. म्हणजे फ्रेशर म्हणून तुम्हाला कन्सिडर शिकतच नाही आम्ही. तुम्हाला 3-4 वर्ष एक्सपिरियन्स आहे म्हणून तुम्ही कन्सिडर करणार आम्ही तुम्हाला. ते 3-4 वर्ष एक्सपिरियन्स वाला तुमचा रिअल टाइम मध्ये डेव्हलप फ्रेंड असेल, त्यांचा रिझ्युमे बघा, नंतर तुमचा बघा, तुमच्याकडे त्यांच्यापेक्षा जास्त नॉलेज असणार. कारण आम्ही मल्टिपल 3-4 लोक जेवढं आम्ही काम केले सगळं मिळून सिलेबस क्रिएट करतो ना आम्ही एवढा. रिअल टाइम मध्ये तुम्हाला कधी कधी जेनकिसवर तुम्हाला 3-4 वर्ष निघून जाते. एवढं हॅलो गोष्टी सर. तुम्ही रिअल टाइम मध्ये तुम्हाला होते का कवर, तुम्ही सांगा कोणी डेव्हलप्स असेल तर. जर सर टेस्टिंग मध्ये एक्सपिरियन्स हो. असेल आणि आता हे डिऑप्स वगैरे केला तर नंतर एक्सपिरियन्स घेताना वगैरे काही प्रॉब्लेम नाही ना येणार? एक्सपिरियन्स घ्यायचंच नाही तुम्ही आमच्याकडून, कशाला पैसे वाया घालायचे एक्सपिरियन्स घेऊन. तुमचं ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आहे रिअल टाइम, त्याच्यात तुम्ही रिझ्युमे टाकून द्या ना. 3 वर्ष मी डेव्हलप्सच काम नाही, केले, एवढा रिझ्युम नाही. किती. ऍक्च्युली 1 इयर 2 मंथचा आहे. त्यामुळे एवढे कॉल वगैरे येत नाहीये. 3+ किंवा 2.5+ इयर एक्सपिरियन्स लागतो ना. त्याच्या मागे लावून टाकू आपण एखादी 1-2 वर्ष एक्सपिरियन्स, करंट एक्सपिरियन्स बघतील ते, मागचं लावून टाकू. ते फी मध्ये थोडंफार ते एक्सपिरियन्स पण त्याच्यावर कमी जास्त करताय ना आपल्याला, आपलं टाईप आहे तर. म्हणजे अपस्किल डेव्हऑप्स मग टेस्टिंग की डेव्हऑप्स मध्ये असं म्हणतो. डेव्हऑप्स पूर्ण एक्सपिरियन्स डेव्हऑप्स मध्ये दाखवून द्यायचं. तिथं डेजिग्नेशनचं काहीच मॅटर करत नाही. सॉफ्टवेअर इंजिनियर असले तरी तुम्ही डेव्हऑप्स म्हणूनच कन्सिडर होतं. मग सर, ते एक्सपिरियन्स लेटर देताना फॉर्म 16 तुम्ही मॅनेज कसं करताय? बघा, आता फॉर्म 16 जर विचारलं तर ठीक आहे, काही काही कंपनी आता आहे, आता 2-3 ठिकाणी आम्ही एक्सपिरियन्स घेतो, काही काही कंपनी फॉर्म 16 पण देतात, पीएफचं पण आजकाल मॅनेज करतं. पण तिथं प्रॉब्लेम काय, त्यांना जास्त पे करावं लागतं. जर आपल्याला फॉर्म 16ची गरज नसेल तर मग आपण थोडंफार आपले तिथे पैसे वाचतील. इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये नसतानाच ना तुम्ही, कारण की पॅकेज दाखवताना तुमचं कमी असेल आणि जर तो रिअल, जर तुम्ही जर ऑलरेडी आयटीत काम करत असाल, तुमच्याकडे सगळं रिअल डॉक्युमेंट आहे. ठीक आहे. ओके. इन्क्वायरी होतात काय? हा हा उमेश, आवाज असं क्लिअर आलाच नाही मला. त्या कंपनीचं आवाज नेटवर्क इश्यू आहे का उमेश? काय म्हणजे आता जे टायमाला बोलतो हॅलो. तेव्हा जाऊ दे. आय थिंक मला पण नाही क्लिअर नाही ते तुमचा बस. जस्ट टू ऍड, ते एक्सपिरियन्सचं तुम्ही विचारत होता, सो ते तुम्ही लाईक आमचं तर इन्स्टिट्यूट आहे राईट, आमचं टायप तर दुसऱ्या इन्स्टिट्यूट दुसऱ्या कंपनीसोबत आहे जे तुम्हाला प्रोव्हाइड करतील. ओके, एक्सपिरियन्स वगैरे सगळं. तर तुम्ही ते जे डाऊट्स आहे तुमचे सगळे ते तुम्ही त्यांच्यासोबत क्लॅरिफाय करू शकता. ठीक आहे. ते जर काय असेल ऑब्व्हियसली आम्ही पण हेल्प करू, पण तुमचे जे काही डाऊट्स असतील एक्सपिरियन्स रिलेटेड ते तुम्ही त्यांच्यासोबत बोलून पण क्लॅरिफाय करू शकता.
तुम्ही डायरेक्ट मला पण कॉल करू शकता. त्याचं त्यांच्याकडे बी असं की आपण सगळं मॅनेज करू, काही प्रॉब्लेम नाही, त्याचं टेन्शन घेऊ नका. जेव्हा लागतं तेव्हा आपलं हे करता एक्सपिरियन्स. काय काय डाऊट असेल तुम्ही डायरेक्ट नंतर विचारू शकता. ठीक है. पूछो आपको जो जो डाउट है आपको. अंकिता आपको कुछ डाउट है क्या? अनिल, ज्योत्सना, निकिता. हॅलो. हा. ऍक्च्युली आता मी जर वर्किंग असो, म्हणजे वर्किंग आहे आणि नंतर आता तुमचा कोर्स ऑगस्टमध्ये संपेल, ठीक आहे. तर ऑगस्टमध्ये संपल्यानंतर फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर की अजून मला 1 महिन्यात कॉल आला आणि मी जॉईन झाले, तर आधीचा एक्सपिरियन्स कसा मग तुम्ही तिथे मॅनेज करणार? जे सध्याचे एक्सपिरियन्स आहे त्याच्या आधीचा ना. नाही नाही, आता मी वर्किंग आहे फॉर एक्झाम्पल मग त्याचे आणि एक्सपिरियन्स मला तुम्हाला पुढे लावायचा ना. सध्या वर्किंग आहे ना, ते एक्सपिरियन्स लावायचं आणि त्याच्या आधीचं पण जर तुम्हाला लावायचं असेल ते पण आपल्याला मॅनेज करता येतं. ते तेवढं नाही, पण तुमचं आता माझी फील्ड वेगळी आहे. कोणती आता फील्ड मी आहे तुमची? टेस्टिंग मध्ये आहे फॉर एक्झाम्पल आणि त्याचा एक्सपिरियन्स आहे 2.5 इयर्सचा आणि मला डेव्हऑप्स मध्ये मूव्ह व्हायचं आहे. हा हा हा. आता तर बघा, अशा केसमध्ये कसं हे होईल? आता तुम्ही टेस्टिंग मध्ये आहे म्हणजे तुमचं तसं ते डेव्हऑप्सचं काम केलं म्हणून तुम्ही दाखवणार. रिझ्युमे तुमचं डेव्हऑप्सच असणार आहे, फक्त तुम्ही एक्सपिरियन्स तुमचं रिअल वाला ॲज इट इज पुढे कंटिन्यू करणार. तुम्ही रिझ्यूम मध्ये कोणी येऊन बघत नाही तुम्ही कंपनीत काय काम केलंय, व्हेरिफिकेशनला कोणी बोलत नाही याचं काय काम होतं, ही कशी काम करायची, याचा प्रोजेक्ट कोणता आहे, याचं क्लायंट कोणतं आहे, हे त्यांचं काम नाही. त्यांचं काम आहे फक्त कंपनीत होती काय या पिरियडमध्ये तेवढं त्यांचं व्हेरिफिकेशनचं काम आहे. तुम्ही काय काम केलंय काही करू द्या, त्यांना काय घेणं देणं नाही दुसऱ्या कंपनीला. तर तुम्ही आहे ते एक्सपिरियन्स कंटिन्यू करू शकता पुढे, आणि हेच बेटर आहे माझ्यासाठी. म्हणजे असं नाही तुम्हाला उगाच पैसे घालण्यात काय अर्थ आहे का. तुम्ही एक्सपिरियन्स बाहेरून घेणार, समजा तुमचं 12 लाखाचं पॅकेज, 1 लाख रुपये तिथं असं थोडं 1 लाख म्हणजे 10-20 हजार कमी समजा तिथं होऊ शकते तिथं. पण हे काय घालायची गरज नाही, ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आहे ते कंटिन्यू करा ना पुढे. नाही सर, ती तसं नाही विचारते. ती काय बोलते की आता तिच्याकडे क्वालिटी अनालिसिसचं एक्सपिरियन्स लेटर आहे XYZ कंपनीचं, राईट, आणि ती नेक्स्ट कंपनीला अप्लाय करते. तर रिझ्युमे मध्ये ऍज अ डेव्हऑप्स इंजिनियर तिने 3 इयर काम केले म्हणून ती अप्लाय करणार, राईट. आणि इन केस ती सिलेक्ट झाली तर ती क्वालिटी अनालिसिसच एक्सपिरियन्स लेटर तिला प्रोव्हाइड करायला लागेल. तर तिथे इश्यू येऊ शकतो का असं तिला बोलायचं? फक्त डिजिग्नेशन दाखवेल तिथं. क्वालिटी अनालिस्ट आहे का तुमचं तसं डिजिग्नेशन? येस. जर मेकॅनिकलचं असेल तर मग तुम्हाला हे दुसरे एक्सपिरियन्स लावा लागेल. आयटीतलंच असेल ना तर त्याला म्हणता येतं माझं होतं डिजिग्नेशन आयटी मध्येच आहे, आयटी मधलाच एक्सपिरियन्स. क्यूए टेस्टिंग मध्ये, सॉफ्टवेअर टेस्टिंग हा, असं मग किंवा त्याला काय क्यूए म्हणायचं, ऑटोमेशन मध्ये. त्याला म्हणायचं मी केलं तर म्हणायचं तसं. डेजिग्नेशनचं काय मॅटर करत नाही एवढं. त्याला म्हणायचं मी टेस्टिंगचं केलं तर म्हणा आधी, पण मला डेव्हऑप्स एक प्रोजेक्ट भेटलं मी त्याच्यावरच कंटिन्यू केलं म्हणायचं पुढे. आणि ते तुम्हाला क्रॉस व्हेरिफाय का नाही करणार कोणत्या प्रोजेक्ट होतं कसं होतं काम ते नाही करणार. पण ऍक्च्युली सर्टिफिकेट वर मेन्शन असतं ना की ऍज अ क्यूए रोल ही वर्किंग होती इथं, आणि हे सगळंच मेन्शन असतं तिथं फक्त तुमचा रोल ह्याच्यावर. असेल, डेजिग्नेशन तुमचं कंपनीचं काय असेल ते असेल तिथं, पण मध्ये काय काम केलं ते तुम्ही सांगू शकता तसं त्यांना. अच्छा. डेजिग्नेशन काय मॅटर करत नाही. आता माझा सिनियर डेव्हऑप्स रोल होता, तर आता टीम लीड रोल आहे. उमेश तुम्ही म्यूट कराल का 2 मिनिट? हा ओके. Actually, the experience letter is na, just to clarify, whatever I seen till date is the 3 important things are there on the experience letter. First is on which date you joined. Second thing, on which date you left that particular organization. Third thing is your designation. Like if you are level 13, level 12, like in different organization, there are different levels, right? There might be some like software engineer, senior software engineer, like that. Okay, so these 3 things are important. Okay, and most of the times, like whatever your personal details are, like suppose there is you are working in this project, or you are working as you worked with this client, or any personal detail, for example your date of birth, or anything. So that particular organization where you are working, that organization can't share it with any other organization. Okay, any personal detail. So that includes your project name, everything. Okay, so they can't share that. Okay. Thank you. With this course, it will be help for the certification, AWS certification.
Yes, yes, yes. Yes, definitely. Yes. I think we already clear all the like solution architect, associate, professionals, all the certificates. Mhm. So we know about how Okay. to crack that exam. Also, processor will provide the dumps for that. Because So you I, guys will I get the am already dumps. working, but just I want to upskill myself and I want to complete AWS certification. That's why I'm looking it. That's why I asked. Okay, okay, that's great. ये AWS लाइक जो भी हम सर्विसेज यूज करेंगे बेसिकली तो वो AWS के लिए हमको उसका अकाउंट एक्सेस लगेगा राइट एंड व्हाट आई हर्ड कि लाइक इट्स कॉस्टिंग उसका रहता है एज पर यूज सो हम्म, हाउ वी कैन हैंडल मतलब लाइक कैसे रहेगा वो अभी देखो. You get 1 year free access for AWS. No, like we can create a trial account, AWS trial account. So there you get ओके the 1 year free access. एक ओके साल तक आपको फ्री टायर अकाउंट रहता है. वो स्पर्शा सर बताएंगे आपको कैसे क्रिएट करना है अकाउंट, क्या क्या लगने वाले सब. एक फ्री टायर अकाउंट सबको ही क्रिएट करना है, ठीक है. सबको फ्री टायर अकाउंट लगने वाले, ठीक है. उसका कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, एक साल तक. और ये भी बिल भी आ गया तो वो वेव अप हो जाता है, ठीक है. या तो दूसरा अकाउंट क्रिएट कर दो उधर, एक मतलब पैसे देने की किधर जरूरत नहीं. फ्री टायर अकाउंट रहते हैं, ठीक है. ओके सर मतलब इंडस्ट्री को जो जो चीजें लगेगी वो आप हम सब वो कवर करने वाले, ठीक है. मतलब किसी एग्जाम सर्टिफिकेशन, अभी किसी ने तो पूछा था सर्टिफिकेशन करना है. सर्टिफिकेशन के लिए ऑलरेडी हमारे पास सर्टिफाइड ट्रेनर है. मतलब क्या क्या लगता है सर्टिफिकेशन के लिए, कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ डम से वो आपको बताएंगे प्रसाद सर. अभी मेरा एक दो सर्टिफिकेशन है, मतलब प्रसाद सर के, मतलब मोहन सर, मतलब जो भी रहेगा, मतलब क्या क्या चीजें लगने वाली है सब आपको बताने वाले, ठीक है. और यस हमारे पास कुछ एक टीम है, उनसे भी टाइप है. कुछ आपको वाउचर लगेगा, कुछ वो भी दे प्रोवाइड कर सकते हैं हम. या तो कुछ सपोर्ट लगेगा, एग्जाम सपोर्ट, वो उसके लिए भी हमारे पास कुछ टीम है. वो कुछ चार्जेस करते हैं और वो पासिंग डायरेक्टली दे सकते हैं आपको, ठीक है. मतलब कुछ डाउट रहे मतलब है क्या किसी को कुछ और डाउट, मतलब पूछ सकते हैं आप जनरली. और ये इससे आगे जिसको जिसको एडमिशन वो इंटरेस्टेड है वो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर दो. मैं एक सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा और उधर से ही हमारा सब लेक्चर कंडक्ट होगा. इससे आगे एक दो डेमो होने के बाद, ठीक है. तो जो जो इंटरेस्टेड है मुझे पिंग कर दो उधर. मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ उधर. उधर सब आपका लाइव रिकॉर्डिंग, ये सब चीजें, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, वो सब उधर ही कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है. ये कम्युनिटी ग्रुप है हमारा, मतलब ये नोटिफिकेशन के लिए ग्रुप बनाया था हमने. इधर सिर्फ डेमो एक दो लेक्चर हो गए इधर, और उसके बाद हम उस ग्रुप पे मूव होने वाले, ठीक है. मतलब किसी को कुछ डाउट है क्या? If no more questions, Sachin, probably we can close the call. Yes. Yeah. And guys, don't forget to